میرال نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وویلا مچانے لگی۔ اللہ اللہ، دیکھیے تو کتنی تیز بارش ہو رہی۔ کشمالہ بے صاحبہ نے ناگواری سے اپنی نکمی بیٹی کو دیکھا۔ چپکے صفدر صاحب نظریں اخبار پر جمائی زیر لب مسکراتے۔ باہر ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جسے میرال تیز بارش کا نام رہی تھی۔ دیکھا، دیکھنا باہر، نہیں نکلنا کہ ایسا نہ ہو کہ بہہ جاؤ۔ کشمالہ بیگم نے دانت کچکچاتے ہوئے بولا تو سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہاں کے کھنڈروں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ارمان بھائی بھی اب وہاں آ چکے تھے۔ ٹی اسٹال کا ٹی ٹائم کا وقت ہو گیا تھا اور سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں سے باہر نکل رہے تھے۔ میرال کا ارادہ آج گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا تھا۔ وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک صفدر صاحب کا فون بج اٹھا۔ میرال نے چور نظروں سے بابا کی طرف دیکھا جن کی ساری توجہ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نمبر پر تھی۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا اور شاہمیر نے احتراماً حال و احوال پوچھنے کے بعد ڈائریکٹ میرال کے بارے میں سوال کیا۔ انکل، کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ آج جلدی آ جانا، پر مجھے ابھی ایک اہم میٹنگ کے لیے بھی نکلنا تھا، لیکن ابھی تک وہ آئی نہیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میرال صاحبہ ٹیوشن کے بہانے اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی، اور یہ راز شاہمیر پر کچھ دن پہلے ہی آشکار ہوا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ اپنے حویلی میں بیٹھے اس نالائق کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ادھر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جوائے لینڈ میں پارٹی کر رہی تھی۔ اس کے دماغ سے یہ بات بالکل نکل چکی تھی کہ آج اس نے چھٹی لے کر جلدی گھر واپس جانا تھا، کیونکہ صفدر صاحب کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور وہ سب لوگ وہاں انوائٹڈ تھے۔ صفدر صاحب مخصوص ٹائم پر اسے لینے کے لیے شاہمیر کے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے شاہمیر سے میرال کے بارے میں سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، انکل وہ تو آئی ہی نہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ صفدر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے، اور صفدر صاحب سیاست میں ملوث تھے، اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ کوشش تو کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھیں، لیکن ایک سیاسی بندہ آخر کب تک 24 گھنٹے اپنے بچوں کی نگرانی کر سکتا ہے، وہ بھی میرال جیسے بچوں کی، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب میرال گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ گھر والوں کو بتائے گی کہ آج شاہمیر نے اسے زیادہ دیر بٹھا کر رکھا تھا۔ ادھر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور ادھر صفدر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کشمالہ صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اپنی بیوی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ صاحبہ کے ہاتھ میں بہت شدید خارش ہو رہی تھی۔ ان کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اپنی نالائق بیٹی کا منہ توڑ ڈالے، جس نے 4 گھنٹوں سے انہیں سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ میرال بیٹا، صفدر صاحب نے محبت بھرے انداز میں سوال کیا تو میرال دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ اس کے ابا تو پہلے ہی بہت اچھے موڈ میں ہیں، یعنی انہیں بیوقوف بنانا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ جی بابا جان، اس نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ میرال بیٹا، آج آپ نے دیر کیوں لگا دی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے فاروق صاحب کے بیٹے کے ولیمے پر جانا ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے میرال نے خوف سے تھوک نکلا۔ تبھی اس کا دھیان لاؤنج میں موجود باقی لوگوں پر پڑا، جو کہ اس وقت شادی کے لیے منتخب کیے گئے جوڑوں میں ملبوس تھے، مگر ان سب کے چہرے پر غصے سے لال تھے، کیونکہ میرال کی وجہ سے ان کا پلان بھی کینسل ہو گیا تھا۔ بابا جان، میرال نے اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا، وہ آج استاد جی نے بٹھا لیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ مجھے ولیمہ پہ جانا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ولیمے سے زیادہ اہم تمہاری پڑھائی ہے۔ ولیمے تو آتے ہی رہیں گے، لیکن امتحان صرف ایک بار ہی ہوں گے۔ اسے ہچکچاتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے کہ اسی وقت ارمان سیب کھاتا ہوا کچن سے نکلا۔ تمہارے استاد جی تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، اسے تو ہمیں یہ بتایا کہ تم آج ٹیوشن گئی ہی نہیں۔ اب کی بار میرال کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اپنی ماں کی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھتے اب اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشمالہ بیگم بجلی بن کر اس پر جپٹی تھی۔ انہوں نے میرال کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس سے پہلے کہ اس پر اپنی سارے غیظ و غضب نچھاور کر دی، صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر فوری اپنی بیٹی کے بال چھڑوائے اور میرال کو سینے سے لگا لیا۔ خبردار،
जो तुमने इससे कुछ भी कहा, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ ना, मुझे इससे बात करने दो। उन्होंने मिराल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लिया। मुझे बताएं बेटा, आप कहाँ गई थी? आप जानती हैं ना कि मुझे आपकी कितनी फिक्र है और मैं अपने बच्चे पर से कितना प्यार करता हूँ। मिराल की आंखों में आंसू बह गए। बाबा जान, मुझसे गलती हो गई। वो खड़ूस उस्तादजी पता नहीं खुद को क्या समझता है, जब दिल करता है मुझ पर रोब जमाता है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी स्टूडेंट नहीं बल्कि ज़बरदस्ती की बीवी हूँ, और बाज़ों का तो मुझे अपनी सास भी मालूम होता है। बाबा, कसम से, क्या आपको पूरी दुनिया में सिर्फ वही हिटलर मिला था? उसे हिटलर कहना हिटलर की भी शान में गुस्ताखी होगी। मुझे तो उसे राजा पोर्स कहना चाहिए। मिराल जो बोलने पर आई तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इस बात से मुकम्मल अनजान कि जिसकी शान में वो जोरों शोर से गुस्ताखियां कर रही है, वो उसी महफिल में मौजूद है। वो भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आया था और अरमान के पहलू में जाकर खड़ा होकर मिराल के लबों से निकलने वाले अंगारे उसके वजूद को जलाने लगे थे। अरमान ने देखकर खौफजदा होकर एक नज़र अपने जिगरी दोस्त शामिर पर डाली, जो कि गुस्से का बहुत तेज था। गुस्सा शामिर की पर्सनालिटी का हिस्सा था। अब जब उसे एक बार गुस्सा आता तो किसी का लिहाज भी नहीं करता था। मिराल के साथ वो अपनी पर्सनालिटी से हटकर बहुत मोहब्बत और एहतराम से पेश आता था, लेकिन जवाब में वो लड़की हमेशा ऊट पटांग हरकतें ही करती थी। यार, उसका थोड़ा सा लिहाज कर जाना, वो मेरी बहन है। अरमान ने शामिर के कान में झुकते हुए मिन्नत पर लहजे में कहा। कश्माला बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। ये लड़की हर जगह इन्हें शर्मिंदा ही करवाती थी। आज भी उन्हें शर्मिंदा ही होना पड़ा था। जब सफदर साहब अपना पहलू बदल कर रह गए, मिराल की नज़र जैसे ही शामिर पर पड़ी, उसकी जुबान को ब्रेक लगी। वो गैर इरादी तौर पर अपने बाबा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि यही मौजूद है? मैं काफी देर से तुम्हें यही इशारा कर रहा था बेटा, सफदर साहब ने कहा। कुशमाला बेगम आगे बढ़कर फिर से मिराल का बाजू पकड़ने लगी थी कि सफदर साहब ने उन्हें रोक दिया। मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने बस इसे समझा लिया है। मेरी बेटी अब दोबारा ये हरकत नहीं करेगी। और जहां तक इसकी गलती का सवाल है, तो आज की बात इसकी पॉकेट मनी बंद। अगले 1 महीने तक इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये घर से अपनी मर्जी से निकल भी नहीं सकती। अगर ये इसे कुछ भी कहीं भी जाना हुआ तो मिराल बेटा, या तो तुम मुझे कहोगे या फिर अपने भाई को कहोगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। बड़े ही मीठे अंदाज में सफदर साहब ने अपनी बेटी के सर पर पम फोड़ा था। अब मुस्कुराने की बारी वहां बैठे बाकी लोगों की थी। मिराल की तो खौफ के मारे जैसे रंगत स्याह हो गई थी। उसने चोर नजरों से अपने उस्ताद की तरफ देखा तो गुस्से के लपेटे में उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। सर खुजाती अपने कमरे की तरफ आ गई। आज उसे मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन इस मज़े की सज़ा भी बहुत ज़्यादा मिली थी। रात को शदीद बारिश हो रही थी। मिराल अपने बेड पर लेटी मुसलसल दुआएं मांगने में मशगूल थी। या अल्लाह, कल भी इतनी तेज़ बारिश होती रहे ताकि मैं इस खड़ूस से ना मिल सकूं। इसे तो मेरी चटनी बना देनी है। तोबा तोबा, कैसे मुझे इतनी खौफनाक नज़रों से दिख रहा था, जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। अरे जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच ही तो कहा, और डंके की चोट पे कहा, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती। वो अपने कमरे में लेटी उसी बात पर सोचे जा रही थी जब किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजाया। वो चिल्लाते हुए उठी। क्या बदतमीजी है! उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अरमान भाई खड़े थे। उन्होंने आंखें छोटी करके उसे घूरा। अपनी लंबी जुबान को ना लगाम दो वरना काट डालूंगा। चलो आओ मेरे साथ। शाल्लाह, एक तो छोटा होना भी ना अजाब है। जिसका दिल करता है हुक्म चलाना शुरू कर देता है। अरमान भाई, आप मेरे साथ इस तरह का रवैया नहीं रख सकते। मत भूलिए कि मैं आपकी मन पसंदीदा औरत से आपकी शादी करवाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा होगा। तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं इस बारे में मामा से बात कर चुका हूँ। वो कंधे उचकाते हुए लापरवाही से बोला। मिराल तो हैरत के समंदर में गौताजन हो गए। सिर्फ यही एक बात होती थी जिसकी बुनियाद पर वो अरमान भाई को परेशान करती थी, और हमेशा अरमान भाई को धमकी देती थी कि अगर आपने मेरी फलाह बात ना मानी तो मैं मामा जान को जाकर आपके चक्कर के बारे में बता दूंगी। और वो बेचारा घबरा जाता, क्योंकि मोहतरमा ने उसे बताया जो हुआ था कि मामा जान कभी आपकी शादी खानदान से बाहर होने के लिए
मैं राज़ी नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें मना लूँ तो फिर आपको मुझे खुश रखना होगा। अरमान जानता था कि उसे कैसे खुश रखना है। उसे अपनी छोटी बहन का हुक्म चलाना शुरू कर दिया और अब वो हर काम में उसे आगे रखता था। लेकिन आज उसके बिगड़े हुए तासुरात देखकर वो बौखला गई थी और सोच में पड़ गई थी कि क्या हो गया है अरमान भाई को। अब उसे पता चला कि अरमान भाई ने अपना मामला सेट कर लिया है। तो इसीलिए किचन में आ गया। अब मुझे यहाँ क्यों लाया है? जल्दी से जाकर ना 4 गर्मा गर्म पराठे बनाओ। 4 पराठे? क्यों? बैंसों को खिलाने हैं क्या? एक बार फिर मेराल की जुबान में खारिश हुई। मान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मेरा सर बहुत दुख रहा है और बहुत सर्दी है। मुझसे पराठे नहीं बनते। मेरा दिमाग खराब मत करो और जल्दी से पराठे बनाना ना शुरू करो, वरना अम्मा जान को जाकर तुम्हारी सारी बंक क्लासेस की खबर कर दूंगा। शाम के वक्त तो अम्मा के हाथों से बच गई थी ना, अब तो अब्बा भी घर पर नहीं है। तुम्हें उनके कहर से कौन बचाने वाला होगा? क्यों परेशान कर रहे हो भाई उसे? अचानक एक जानी पहचानी मर्दाना आवाज मिराल के कानों से टकराई। उसने बेख्तियार खौफ से थूक निकला। पहले तो उसे वाकई लगा कि ये उसकी गलत फहमी है, लेकिन जब दोबारा वही आवाज गूंजी तो वो बेख्तियार पलटी। सामने ही शामिर कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठा मोबाइल में मशगूल था। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था और मिराल को कहे हुए अल्फाज किसी गाने की तरह बार बार उसके दिमाग में अब गूंज रहे थे। वो बेबस था, अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। उस्ताद जी, क्या क्या कर रहे हैं? मिराल ने हैरत से सवाल किया। तुम अपने काम से काम रखो और जो कहा है ना वो करो। अरमान ने फौरन उसकी तवज्जो काम की तरफ मबसूल की। फिर उन दोनों जालिमों ने ना सिर्फ उसे आलू के पराठे बनवाए, बल्कि बाद में फ्राई एग्स बनवा कर भी मज़े ले लेकर खाए। मिराल की कमर में शदीद दर्द निकल आया था। उसके लिए खड़े रहना भी अब मुश्किल हो रहा था। अभी वो फ्राई अंडे की आखिरी प्लेट निकाल ही रही थी कि अरमान कॉल सुनने के लिए बाहर चला गया। अब किचन में वो और शामिर ही बाकी रह गए थे। शामिर की नज़रें उसकी कमर पर जमी हुई थी। मिराल उसे नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि उस शख्स उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा है। वो उस्ताद जी, दोपहर के वक्त जो कुछ हुआ उसे बोलना चाहा, लेकिन शामिर ने फौरी उसकी बात काटी। मिराल साहिबा, दोपहर के वक्त जो कुछ भी हुआ उस बारे में मैं कल आपसे तफसील से बात करूंगा। और आप यकीन मानिए, आप मुझे वाकई बहुत खुशी है कि आपने दिल खोल कर अपनी बरास निकाल लिया। ये कहकर वो उठा और मजबूत कदम उठाता मिराल के पहलू में जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर खौफ से थूक निकला। शामिर उसके बाबा के दोस्त का बेटा था और अरमान की बेस्ट फ्रेंड भी था। उसका मिराल के घर में काफ़ी आना जाना भी था और उसके फैमिली टर्म बेस्ट थे। शामिर की एक बहन भी थी जो कि लंदन में कैंप वजीर थी, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही थी। वो भी मिराल की ही कॉर्बन कॉपी थी, उसी की तरह शरारती। शामिर तो उसे देखकर कानों को हाथ लगाता था। उसे कम अकल बेवकूफ़ और शरारती लड़कियां जहर लगती थी। वो चाहता था कि औरत मजबूत आसाब की मालिक हो और अपने आप को संभालने वाली हो। जब भी वो मिराल को देखता तो उसे खौफ होता। ओवर साइज हुडी के साथ हमेशा उसे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी होती थी और इन कपड़ों में वो वाकई लड़का ही लगती थी। कई बार कुशमाला बेगम ने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़कर उसे हुलिया चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो मिराल ही क्या जो कभी किसी की बात मान ले। अरमान ने कभी इन मामलात में उस पर सख्ती नहीं की थी। वो जिस तरह के भी कपड़े पहनना चाहती थी उसे इजाज़त देता और वो स्पोर्ट करता था, लेकिन शामिर को उसकी हर हरकत से कोफत होती थी। वो खुलकर उसका इजहार भी करता था और ये बात मिराल भी जानती थी कि उसे सख्त नापसंद करता है, लेकिन वो लापरवाह थी। उसे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसे मोहब्बत करने वाले ढेर सारे लोग उसके मौजूद थे, तो वो एक इंसान की नफ़रत की वजह से खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हाँ, ये बात थी कि वो उससे बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि शामिर साहिब की दी हुई सज़ाएं नाकाबिले बर्दाश्त होती थी। तकरीबन आधी रात तक उन दोनों की खिदमत करने के बाद भलाखिर उसे अपने कमरे में आकर सोने का मौका मिला। अगली सुबह जब वो उठी तो तेज़ बारिश हो रही थी। उससे पहले अपने कमरे में बंगड़े डाले और फिर वो नाचती हुई नीचे की तरफ भागी। लाउंज में जी बढ़ के बंगड़े डालने के बाद उसने अपनी खुशी का ऊंची आवाज़ में इजहार करते हुए कहा, आज तो मज़ा ही आ गया। तेज़ बारिश है, यानी मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगी। उन्हें कॉलेज वाले ने फ्री कर दिया था।
क्योंकि अब उनके इम्तिहान सर पर थे। वो कॉलेज तो नहीं जाती थी, लेकिन ट्यूशन रेगुलर जाती थी। पिछली बार भी उसकी 2 मज़ामीन में सप्ली आ गई थी। उसके ख़ानदान में कोई भी इस कदर नालायक और निकम्मा नहीं था जिस कदर वो लड़की थी। सफदर साहब अक्सर अपना सर दोनों हाथों में पकड़ कर बैठ जाते और सोचते कि न जाने इसकी बेटी का अब क्या ही होगा। जिस तरह की उसकी कारकर्दगी थी तो उन्हें तो उसका एफएससी में पास होना भी मुश्किल नज़र आ रहा था। उन आखिरी लम्हात में उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से मदद लेने का फैसला किया था। मोहतरमा का छुट्टी करने का प्लान बेरा गर्क हो गया क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और दूसरी तरफ से उसके उस्ताद जी की कॉल भी आ चुकी थी। मरता क्या ना करता कि मुस्ताक, उसने मदद तलब नज़रों से अरमान भाई की तरफ देखा। खबरदार, जो ये मस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर दोबारा मुझे देखा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। जितना टॉर्चर तुमने मुझे किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। चुप करके ना ट्यूशन पढ़ने जाओ। इस बार फेल हुई तो अब्बा से कहकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इम्तिहान से डर लगता है भाई, शादी से नहीं लगता, उसने बेबाकी से जवाब दिया। तौबा तौबा, इसकी जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही। कशमाला साहिबा ने वहीं से जूता उठाकर उसकी तरफ फेंका तो वो कमाल फुर्ती का मुजाहिरा करते सोफे के पीछे छुप गई। अगले 15 मिनट वो उस्ताद जी की बैठक में बैठी हुई थी। वो पूरी बैठक उस्ताद जी की मेडल्स और तस्वीरों से भरी हुई थी। हर बार की तरह आज भी वो बुरे बुरे मुंह बनाए जा रही थी। मैं कहती हूँ, क्या फ़ायदा इंसान का इतना ज़्यादा पढ़ने का, जब आखिर में जाना उसे कब्र में ही है। चाहे इंसान के पास डिग्री हो या ना हो, एंड पर उसका ठिकाना तो मौत ही है ना। और शामी की एक तस्वीर के सामने खड़ी च्युइंगम चबाते खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अगर इंसान अच्छे काम करके इस दुनिया से जाए तो पीछे लोग उसे याद भी रखते हैं, और जब भी उसका नाम लेते हैं तो अच्छे अच्छे अल्फाज ऐसे लेते हैं। जो कुछ नहीं करता उसे दुनिया बहुत जल्द भूल जाती है। शामी ने उसके कानों के करीब आकर अपनी मखसूस बाहरी लहजे में कहा तो सिर पटाकर पीछे की तरफ हुई। लेकिन पीछे ही शामिर खड़ा था। उसका सर जोर से शामिर के भारे सीने से जा टकराया। हाय अल्लाह, मैं मर गई। ये आपकी चेस्ट है या कोई बिल्डोजर? वो बेयकीनी से अपनी पेशानी मसल रही थी और गसीली नज़रों से शामिर को देख रही थी। तो तुम ऐसे काम क्यों करती हो जो बाद में तुम्हें रोना पड़े? अभी मैंने तुम्हें वहाँ बैठने और सवाल प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, और यहाँ आकर मेरी तस्वीर पर तबसरे करने के लिए नहीं कहा था। इस काम के लिए मैंने पहले ही बहुत लोग रखे हुए हैं। तुम इसमें अपना हिस्सा ना डालो तो बेहतर है। मुझे कोई मसला नहीं होगा। उसका लहजा सख्त और हर तरह के जज्बे से पाक था। जल्दी से वो सवाल निकालो जिसकी तुमने प्रैक्टिस करनी थी। शामिर ने कभी भी उससे मीठे या प्यार भरे अंदाज में बात नहीं की थी, बल्कि उसने तो कभी मोहतरमा को नॉर्मल अंदाज में मुखातिब भी नहीं किया था। उसका लहजा हमेशा चट्टानों जैसा सख्त ही होता था। मिराल सर झुकाकर खामोशी से बैठी कॉपी निकाल रही थी, जिस पर उसने प्रैक्टिस करना तो दूर, सवाल का नंबर भी नहीं लिखा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसकी छुट्टी हो जाएगी। परेशानी के मारे इस कदर शदीद ठंड में भी उसे पसीने आ रहे थे। शामिर ने जब उसकी हथेलियों पर पसीने के चमकते कतरात देखे तो वो समझ गया। यकीनन तुमने वो सवाल प्रैक्टिस नहीं किया है। सर जी, मुझे आखिरी मौका दें। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। शामिर उसे अपने का इशारा कर रहा था। जाओ और उधर कोने में जाकर खड़े हो जाओ। खड़े होकर ये सारे सवाल करो। जब तक ये सवाल मुकम्मल नहीं होते तब तक तुम अपनी जगह से एक इंच नहीं हिलोगी। अगर तुम बैठी या तुमने एक कदम भी पीछे किया तो पूरी रात इसी जगह खड़ा रखूँगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बचाने आएंगे तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। सर वो शटा और हलक के बल दहाड़ा। खौफ के मारे मोहतरमा की आंखें भीगने लगी थी। उसका वजूद कांपने लगा था। आज से पहले कभी किसी ने उससे इस लहजे में बात ही नहीं की थी, और शामिर का ये रूप वो जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। उसे अरमान से शामिर के गुस्से के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी तजर्बा करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। अभी वो कानों को हाथ लगा ही रही थी। उठो और वहां जाओ और ये सारे सवाल मुकम्मल करो। मोहतरमा ने वहां से भागने की कोशिश की तो शामिर ने हाथ आगे बढ़ाकर जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही कमरे को अंदर से लॉक भी लगा दिया। सर, अब मुझे हरास लेने की कोशिश कर रहे हैं ना? मिस,
اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو آپ یہی سمجھ لیجیے۔ ویسے آپ نے مجھے ڈھیر سارے القابات سے تو نوازا ہی ہوا ہے، میرے لیے اور ایک لفظ استعمال کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی ٹھنڈا اور ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ میں بابا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میرال نے آخری بار دھمکی دیتے ہوئے بچنے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ آپ چاہیں تو پرائم منسٹر کے پاس بھی درخواست دے کر جا سکتی ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، آپ اسی کی مستحق ہیں۔ مجھے پہلے ہی تھی آپ کو آپ کی اوقات میں رکھنا چاہیے تھا۔ چلیں اب اٹھے، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں، ورنہ اس کی کھڑکی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ وہ اس قدر لال انگارہ آنکھوں سے میرال کو دیکھ رہا تھا کہ میرال کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہو کر لکھنا کافی مشکل کام تھا۔ وہ بیٹھ کر بڑی بڑی دشواری اور پریشانی سے لکھتی تھی۔ 3 سوالوں میں پوری رات لگا دی تھی اور اس دوران وہ اپنی باقی کے شوق پورے کرتی تھی۔ کبھی شیٹ ماسک لگا کر بیٹھ جاتی تو کبھی اپنا فیورٹ شو دیکھنے لگتی۔ ابھی تو نہ ہی اس کے کمرے میں ٹی وی تھا اور نہ ہی اس کا موبائل اس کے پاس تھا۔ وہ اپنے موبائل کو اپنے استاد جی کے ہاتھوں میں گھومتا دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تمہارے سوال چیک کروں گا، اگر مکمل نہ ہوئے تو تمہارا ٹائم مزید 2 گھنٹے بڑھ جائے گا۔ میرال کو کھڑے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور سوال ابھی تک مکمل نہیں ہوئے تھے۔ میرال اپنا کام چیک کراؤ۔ شامر کی آواز سن کر وہ سن ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی، کیونکہ یہ ناممکن کام تھا۔ جن سوالوں کے لیے اسے پورے 2-3 درکار تھے وہ 2 گھنٹوں میں کیسے مکمل کر سکتی تھی؟ اس کا دل کیا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اسے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج گھر جا کر وہ ہر حال میں اپنے بابا کو اس شخص کی حرکتوں کے بارے میں بتائے گی کہ وہ کتنا ظالم اور خود سر انسان ہے۔ شاہمیر جو میرال کے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں گما رہا تھا ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ موبائل پر ایک مخصوص نمبر جگمگا رہا تھا جو اس کے اپنے ہی کزن کا تھا۔ پہلے اس نے نمبر کو اطمینان سے دیکھا، وہ وہی نمبر تھا۔ سر، اس طرح کے کسی موبائل کی اجازت کے بغیر اٹھانا اور ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی معیوب حرکت ہے۔ میں حال سے رہا نہ گیا تو وہ فوراً چلاتے ہوئے بولی۔ اسے واقعی ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ شامر کے سامنے کچھ عرصہ پہلے والا واقعہ گھومنے لگا اور اب اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی روٹین کے بارے میں میرال کو کس سے خبر ملتی تھی، کیونکہ ان کا اپنا کزن جو شامر کا خاص یار تھا وہ میرال کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس نے میرال کو شامر کو اپنی کولیگ کے ساتھ تصویر بھیجی تھی جنہیں بعد میں شامر کے بابا کو دکھایا تھا۔ شامر نے اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن تب اس کے بابا نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ اسے میرال کے سامنے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ شروع میں شامر کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی تھی، اور اس کے بعد شامر نے اس پر کافی سختی شروع کر دی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو پیار سے ڈیل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنے سر پر چڑھا دیا جائے، اور شامر ایسا کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ 5 گھنٹے گزر چکے تھے اور میرال ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں مسلسل کانپنے لگی تھی اور سر بھی چکرا رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ شامر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، اس لیے وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل پر اپنا فیورٹ سیزن دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سر، اچانک میرال کی دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بول رہی ہو، مجھے یہ ڈرامے کام نہیں کرنے والے ہیں میرے اوپر۔ میرال جلدی سے اپنا ٹاسک مکمل کریں، پھر آپ یہاں سے جا سکتی ہے۔ اپنی 2 نمبر ایکٹنگ اپنی ٹیچرز کے لیے سنبھال کر رکھیں، شاید انہیں آپ کی بات پر یقین آ جائے۔ سر، واقعی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میرال کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ شامر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں چھوٹی کر کے میرال کے چہرے کو دیکھنے لگا، جسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ہاں وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ پھر وہ اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس کے نزدیک کھڑا ہوا، میرال چکرا کر زمین پر گرنے لگی، اور شامر نے آگے بڑھ کر اسے فوراً سے اپنے بازو میں پڑھ لیا۔ تب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ میرال کی طبیعت واقعی میں بہت خراب تھی۔
वो बुखार में तप रही थी और उसके गाल भी सुर्ख अंगारा हो गए थे। आप एक बहुत जालिम इंसान हैं, मुझे आपसे नफरत है, आप मुझे जहर लगते हैं। वो होश की दुनिया से बेगाना हो रही थी, इसलिए काफ़ी आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। उसकी बातें सुनकर शामिर ने मजबूती से अपने लब खींच लिए। अचानक ही उस जैसे पत्थर शख्स को ये अल्फाज बहुत बुरे लगे थे। हालांकि उनमें कोई झूठ नहीं था, वो जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही थी। वो वाकई एक सख्त और जालिम इंसान था जिस अपने सिवा किसी की परवाह नहीं थी। वो उसे उठाकर तेजी से नीचे की तरफ भागा। शाबिर की अम्मी ने जब उसे देखा तो परेशान हो गए। क्या हुआ है, इसे ठीक तो है ना? अम्मी, इसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, वो तेजी से जवाब देता हवेली से बाहर निकल गया। लेकिन जाने से पहले वो अपनी अम्मी जान को हदायत करना नहीं भूला था कि इस बारे में किसी को ना बताए, और मेराल के घर वालों को तो बिल्कुल भी ना बताए। उसे शाम के वक्त ही सफ्तर साहब को कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मेराल मेरे पास रात देर तक पड़ेगी, क्योंकि आज उसका काम बहुत ज़्यादा है। सफ्तर साहब इससे हद से ज़्यादा यकीन करते थे, इसीलिए उन्होंने इजाज़त दे दी। अगर उन्हें पता होता कि उनकी बेटी इस शख्स की वजह से अस्पताल पहुंच गई है तो शायद वो सारे लिहाज भूल जाते। मगर अब अपनी बेटी पर तो किसी को फोकियत नहीं दे सकते थे ना। मेराल को ड्रिप लगी हुई थी और थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया था। इस दौरान शामिर जले पाँव की बिल्ली बना बाहर चक्कर काट रहा था। उसे बार बार अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि जब वो ये बात जानता था कि वो लड़की नाजुक है और लाड प्यार में पड़ी है और इस तरह की सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो उसने ये हरकत आखिर क्यों की? जब वो अंदर गया तो मिराल लड़खड़ाती हुई ज़मीन पर गिर रही थी। उसे नर्स बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी। मैडम, इसे क्या हुआ है? शामी ने हैरत से सवाल किया। आई एम रियली सॉरी सर, दरअसल लगता है कि इन्हें थोड़ी सी हैवी डोज दे दी गई है, इसी वजह से अब ये होशो-हवास में नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इनके जहन पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा और ये थोड़ी देर में होश में भी आ जाएंगी। नर्स उसे पूरी डिटेल्स बता रही थी, जबकि शामिर हैरत से मिराल को घूर रहा था। जैसे बेख्तियार निगाहें उठाए फिर शामिर को आंख मारते बोले, ओए चिकने, कैसा है? आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। कहीं डेट पर जाने का इरादा तो नहीं? देख, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर मेरे अलावा किसी और की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। वो लड़खड़ाती हुई शामिर के ऊपर गिरने ही लगी थी कि बड़ी रफ्तारी से शामिर ने दोनों हाथ आगे करके उसके कंधों को सहारा दिया और उसे खुद से दूर किया। मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने किसी और से शादी कर ली है ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहकर वो शामिर के सीने से जोर से मुक्के मारने लगी। अब की बार होने वाली हालत शामिर की बन चुकी थी। कभी इसका इस तरह का सूरत हाल से पाला नहीं पड़ा था, और वो तो उस लड़की के बदले हुए रूप को देखकर हैरान हो रहा था। उसे मदद तलब नजरों से नर्स को घूरा तो कंधे झुकाए हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बाकी के अल्फाज वो भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उसके बाद शामिर ने उसे अच्छी खासी बातें सुनाई और धमकी दी, मैं सीनियर डॉक्टर से जाकर आप लोगों की कंप्लेन करूंगा। अरे अरे डार्लिंग, क्यों डांट रहे हो उसे? इसे कुछ मत कहो। देखो, तुम हमारी बेचारी सुबह से काम कर रही थी, इंसान से गलती हो ही जाती है ना। फिलहाल फिर से शामिर पर गिरते हुए की बात उसकी गालों को जोर से खींचते हुए बोली थी। नर्स को मिराल पर पहली बार प्यार आया और नजरें बचाकर वहां से निकल गई, जबकि शामिर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिराल को अस्पताल में रहने दे या फिर घर ले आए। अगर वो अस्पताल में रुक जाती तो मिराल के घर वालों को इन्फॉर्म करना पड़ता, और जब वो यहाँ आते तो मिराल उन्हें शामिर की सजा के बारे में बता देती और इससे शामिर खुद मुश्किल में फंस सकता था। सफदर साहब उस पर एतमाद करते थे, उन्होंने बड़े मान से अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी से दी थी। वो वाकई इस कश्मकश में बुरी तरह से फंसा था। जब मिराल का हाथ पकड़ते हुए बोली, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ बहुत घुटन है, चलो ना बाहर चलते हैं, खुली फिजा में जाकर सांस लेते हैं और फिर ऐसा करते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। काफ़ी अरसा हो गया हम लोग बाहर घूमने फिरने ही नहीं गए। शामिर का दिल किया कि वो अपने बाल खींचना शुरू कर दे। पता नहीं इस लड़की का दिमाग कैसे चल रहा था।
न जाने वो कौन सी मूवी देखकर फारिग हुई थी और अब खुद को उसी मूवी की हीरोइन समझ रही थी। शामिर ने उसके हाथों पर से अपना हाथ छुड़ाया तो वहीं ज़मीन पर बैठकर छोटे बच्चों की तरह पाँव मारते हुए रोने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सरताज? तुम मुझे ऐसे गुनाहों की सज़ा कैसे दे सकते हो जो मैंने किया ही नहीं? और तुम इस कदर ज़ालिम और संदिल कैसे हो सकते हो? शामिर ने बौखलाते उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसने अपने साथ खींचता बाहर ले जाने लगा। वो किसी कटी हुई पतंग की तरह उसके साथ खींचती चली जा रही थी। जब वो दोनों पार्किंग एरिया में पहुंचे तो वो फिर से चहकते हुए बोली, कसम से मज़ा आ गया तुम्हारे साथ भागकर, जिंदगी का असल मज़ा है। ये कहकर उस शामिर के करीब और उसके कंधे पर अपना दायां हाथ रखते हुए बोली, किसी को पता नहीं चलेगा ना कि हम दोनों घर से भाग गए हैं। अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे और वो मुझे जान से भी मार देंगे। मुझे नहीं मरना, मुझे तुम्हारे साथ इसी दुनिया से जाना है। अगर मैं मरी तो तुम्हें भी मेरे साथ ही मरना होगा। कोई किसी को नहीं मार रहा और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब की बार शामिर ने अपने आप को कंपोज करते बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकाले थे। वो एक लड़की को तसल्ली दे रहा था, वो भी उसका साथ निभाने की। ये सोचकर उसे हंसी भी आ रही थी क्योंकि वो बचपन से ही लड़कियों से बहुत दूर दूर रहा था और उसकी वजह उसकी पर्सनालिटी का एटीट्यूड था। वो लोगों के पीछे भागना पसंद नहीं करता था। आसपास के लोग हालात देखकर अंदाज़ा लगा लेते थे कि आजकल के ताल्लुकात किस बुनियाद पर होते हैं और उसे लगता था कि लड़की के नखरे उठाना उसकी शान के खिलाफ है। इसलिए वो कभी किसी रिश्ते में नहीं आया था और आज उस लड़की को तसल्लियाँ दे रहा था। ये अलग बात थी कि वो झूठी तसल्लियाँ थी। शामिर ने उसे बड़ी मुश्किल से फ्रंट सीट पर बिठाया और अब वो सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। जब वो दोनों घर पहुंचे तब तक तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके पास मौका था। उसे फौरन अम्मा जान को कहा कि वो सफदर साहब को कॉल करके बता दे कि वो अपनी बेटी की फिक्र ना करे, वो आज की रात यहीं रहेगी। सारी कहानी अम्मा जान को बता चुका था, इसलिए ज़किया बेगम ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई थी और सफदर साहब का फ़ोन डायल कर दिया। दूसरी तरफ सफदर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जवान बेटी थी, इसलिए वो उसे किसी के घर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन ज़किया साहिबानों ने हर तरह से तसल्ली दी थी कि आप फिक्र मत करें, जिस तरह वो आपकी बच्ची है बिल्कुल इसी तरह वो मेरी भी बेटी है। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। शामिर तब तक मोहतरमा को उसके कमरे तक पहुंचा चुका था। अब वो अपने कमरे में लेटी छत को घूर रही थी और खुद से बातें किए जा रही थी। उसे रात को खाना भी नहीं खाया था और इस बात का शामिर को अंदाज़ा था और वो 11 बजे उसके कमरे में खाने की ट्रे लेकर गए। पहले उसने सोचा कि मुलाजमा को भेज देगा, लेकिन फिर ये सोच करके खुद जाने का फैसला किया कि अगर मुलाजमा ने उस लड़की की हालत देखी तो यकीनन सफदर साहब को शिकायत लगा देगी। ज़किया बेगम भी सो रही थी। वो शुगर की मरीज़ा थी और दवाई लेकर वो जल्दी सो जाती थी। उधर वो कमरे में दाखिल हुआ और उधर मोहतरमा ने कुशन उठाकर जोर से शामिर के चेहरे पर दे मारा। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटा। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि मिराल ने एक और कुशन मारा। पागल तो नहीं होगी, तुम क्या कर रही हो? मेरे कमरे से बाहर निकलो तो, मिराल ने चीखते हुए आवाज में कहा। आपकी बार शामिर ने खाने की ट्रे गुस्से से साइड टेबल पर रखी और दरवाज़ा लॉक करता उसके करीब चलाया। उन दोनों के बाजुओं को पकड़कर उसने ज़बरदस्ती उसे कंट्रोल करते उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अपनी ज़ुबान को संभाल कर बात करो। तुम काफ़ी देर से मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। इतना कहना था कि फिर से मिराल ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर रोना शुरू कर दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो शामिर? आखिर तुम क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुझे बताओ, क्या मुझ में किसी चीज़ की कमी है? वो अब थकी हुई हालत में बेड पर लेटी थी, अपने हाथों की पुश से आंसू साफ करते हुए उसे शिकायत कर रही थी, जबकि वो बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो शामिर, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मिराल ने यह कहकर उसके सीने पर जोर से उंगली मारी। जहाँ तक मुझे लगता है किसी को मुझसे नफरत हो सकती है क्योंकि मैं वाकई बुरा हूँ और हर कोई मुझसे नफरत करता है। शामिर ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मिराल ने आंखें टिमटिमाते हुए उसकी आंखों में देखा। उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी।
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر بول کیا رہی ہے. اسے صرف یہ پتا تھا کہ اس کے سامنے جو انسان بیٹھا ہے وہ اس کا پسندیدہ شخص ہے اور جسے کئی بار وہ دعاؤں میں مانگ چکی ہے. شامر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ جیسے جم گیا. کیا تم مجھ سے واقعی نفرت نہیں کرتی میران؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بس مجھے تم زہر لگتے ہو. تمہیں دیکھتی ہو تو دل کرتا ہے کہ تمہارے بال غصے سے کھینچ کھینچ کر تمہارا حشر خراب کر دوں اور تمہارے منہ پر لال تمہارا منہ لال کر دوں. جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تب سے تم نے میرا سینہ حرام کر دیا ہے. تم آخر اتنے برے کیوں ہو؟ مجھے اس بات کا جواب دو. آخر میرے ساتھ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے جنگلی انداز میں بولی تو شامر غیر ارادی طور پر پیچھے ہو گیا. واقعی اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. جو کہہ رہی تھی وہ کر بھی سکتی تھی. تم اتنے پیارے ہو، کاش دل کے بھی تھوڑے اچھے ہوتے تو تمہارے ساتھ شادی کر کے بہت مزہ آتا. لیکن ابھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی. ابھی میں اپنے جیسے ہسمکھ لڑکے سے شادی کروں گی. تم اب یہاں سے جا سکتے اور یہ کھانا بھی یہاں سے لے جاؤ. مجھے نہیں کھانا یہ کہہ کر میرال نے اپنے سر پر کمبل تان لی اور تھوڑی دیر میں کمرے میں اس کے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ شامر کے ذہن میں ابھی تک وہی ایک جملہ گونج رہا تھا. جب میرال نے اس کی طرف بہکی بہکی نظروں سے دیکھتے ہوئے جس بات سے چور لہجے میں بات کہی تھی کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، اس وقت شامر کے دل میں ایک بہک مس ہوئی تھی اور اس نے بے اختیار خود سے نظریں چرائی تھی. وہ اپنے دل سے بھاگ رہا تھا، حالانکہ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا کہ ہر بار وہ اپنے دل کا یہی جواز پیش کرتا تھا کہ وہ لڑکی میرے مطابق نہیں ہے. اور اس جواز کے باوجود بھی اس کا دل میرال کے لیے مچلتا تھا. صبح جب میرال سو کر اٹھی تو اس کے سر پر شدید درد ہو رہا تھا. اس نے خود کو ایک انجان جگہ پر پایا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا. بچا، کوئی ہے یہاں؟ مجھے یہاں سے نکالو. کمرے سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر ذکیہ بیگم پریشانی سے اٹھی اور جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میرال باہر نکلی. ان دونوں کی آپس میں ٹکر. یہ منظر دیکھ کر شامر دنگ رہ گیا. چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی. وہ ان کی مدد کے لیے بھاگا. میرال ابھی تک چیخے جا رہی تھی. مجھے بچا، مجھے یہاں سے نکالو. شامر نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی. ٹکر ٹکر شامر کے چہرے کو دیکھنے لگی. کیا آپ نے مجھے اغوا کر لیا ہے؟ میرے بچے، تمہیں کسی نے اغوا نہیں کیا. ذکیہ صاحبہ ابھی تک اپنا ماتھا مسل رہی تھی. درد تو میرال کو بھی ہو رہا تھا لیکن ابھی وہ خوف کے زیر اثر تھی. رات کے وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن پھر سے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی اور اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا سوائے اس کے کہ اس کے استاد جی نے اسے سزا دی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی. کچھ بھی نہیں ہوا، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی نا، پھر ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. رات کے وقت تیز بارش تھی، بس اسی وجہ سے تمہیں گھر نہیں بھیجا. تم بالکل ٹھیک ہو. وہ لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ملازمہ نے آ کر ذکیہ صاحبہ کو انفارم دیا کہ صفدر صاحب کی بیٹی کو لینے آیا ہے. باپ کا نام سنتے میرا کا دل پرسکون ہو گیا. شامر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی. اس نے بابا کو اندر بیٹھنے بھی نہیں دیا اور تیزی سے ان کے گھر سے بھاگی. اپنی بیٹی کی سوجی ہوئی آنکھیں اور ستایا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر صاحب کا دل پریشان ہو گیا. تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اسے صفدر صاحب کو اپنی خراب طبیعت کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور وہ جانتی تھی کہ شامر نے بھی یہ بات چھپائی ہوئی ہے. اور نہ صفدر صاحب سب سے پہلے اس کی طبیعت کا پوچھتے. اس نے انہیں استاد جی کی سزا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. آخر کیوں اس شخص کا پردہ رکھ رہی ہے. اگلے 2 دن معمول کے مطابق گزرے. وہ گھر میں ہی رہ رہی تھی. اسی دوران شامر بھی ضروری کام سے شہر کی طرف گیا ہوا تھا. ان دنوں میں میرال نے کھل کر آرام کیا، اپنی مرضی کی جگہ پر گھومنے گئی. اس دوران ارمان کا رشتہ بھی پکا ہو گیا اس لڑکی سے جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا اور آخر کار وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. حویلی میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا جبکہ میرال باہر لاؤنج میں کھڑی آسمان پر
चांद को घूरे जा रही थी। उसके दिमाग में कोई रोमांटिक बात नहीं चल रही थी, बल्कि सिर्फ टेंशन भरी ही बातें थी, क्योंकि अभी तक उसे अपने इम्तिहान की परेशानी हो रही थी। शामिर के पास वो जितना अरसा जाती रही, उसने सिवाय वक्त ज़ाया के कुछ नहीं किया था। और अब पेपर की टेंशन की वजह से उसके पढ़ने का दिल तो करता था, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। कभी अम्मी उसे अपने साथ बाजार ले जाती, तो कभी भाई उसे अंगूठी पसंद करने के लिए लेकर जा रहा होता। शामिर वापस आने के बाद सबसे पहले सफदर साहब से मिलने गया। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ था कि अचानक उसकी नज़र मिराल पर पड़ी, जो आसमान तले चांद को घूर रही थी। चांद की रोशनी मिराल के चेहरे को मजीद रोशन और खूबसूरत बना रही थी। वो लड़की बेहद दिलकश थी, उसमें कोई शक नहीं था। और शामिर के लब मुस्कुराहट में ढल गए। कल ही तो उसकी अम्मी ने उसे मिराल के रिश्ते की बात की थी, और सफदर साहब भी तो यही चाहते थे ना कि शामिर मिराल से शादी कर ले, और उसने हामी भर ली थी। सफदर साहब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शामिर उनकी बेटी को बहुत मोहब्बत से रखेगा और उसे बिल्कुल उन्हीं की तरह संभालेगा। अभी घर में उन दोनों के रिश्ते की बात चल ही रही थी, और सफदर साहब भी मिराल को नहीं बताया था कि ज़किया साहिबा ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगा है। वो जानते थे कि वो वहीला मचाएगी या फिर पढ़ाई का बाइकाट ही कर देगी। वो चाहते थे कि पहले उसका इम्तिहानात हो जाए और उसके बाद ही उसे इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अल्लाह भरे कल भला करे अरमान का, जिसके पेट में कोई बात टिकती ही नहीं थी। जब भी कोई बड़ी बात उसे पता चलती तो उसके पेट में दर्द होने लगता था। रात का वक्त था। मिराल किचन में अपने लिए नूडल्स बना रही थी। जब वो दनदनाता हुआ किचन में दाखिल हुआ, छोटी बहना, सुना है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। चमचा मिराल के हाथों से छूटकर जमीन पर गिरा। हाय ला भाई, उसे सीने पर हाथ रखते हुए कहा। हमान समझ नहीं पाए कि वो खुश हो रही है या परेशान, लेकिन जब मिराल खुलकर मुस्कुराए तो अरमान की जान में जान आए, क्योंकि उसकी बहन की खुश होने का यही अंदाज था जिसे वो समझ चुका था। भाई, वो लड़का कौन है, कैसा है, मुझे बताओ ना। अरे अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता। बाबा जान ने अभी सिर्फ बात की है कि इन्होंने अपने दोस्त के बेटे को तुम्हारा रिश्ता दे दिया है, तो फिक्र मत करो, लड़का काफ़ी हैंडसम मालूम होता है। अब ये बाबा जान से कंफर्मेशन लूँगा, फिर तुम्हें बताऊँगा। फिलहाल तुम ये सोचकर खुश हो जाओ कि भाई से तुम्हारी जान छूट रही है। भाई के जाने के बाद वो एक लम्हे के लिए जैसे खुश हो गए। उसका दिल ढूक कर उभरा, और दीवार के किसी कोने में उस्ताद जी का चेहरा भी घूमा, क्योंकि जिस तरह के आदमी का उसने जहन में तस्वुर किया था, उस्ताद जी उस नक्शे पर पूरा उतरते थे। लेकिन गुस्से के तेज थे। जबकि मिराल चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स उससे बेतहाशा मोहब्बत करने वाला हो, उसको मनाने वाला, उसके पीछे पीछे भागने वाला, उसके लिए उसके जीने मरने के लिए जीने मरने वाला हो। नॉर्मल लड़कियों की तरह उसकी भी यही ख्वाहिशात थी। अगले दिन जब वो ट्यूशन पढ़ने गई तो उसने रास्ते से मिठाई का डिब्बा भी ले लिया था। उसने अरमान से कहा था कि वो ये अपने उस्ताद जी को देगी। अरमान तब भी अपनी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। अरे तुम उसके लिए गुलाब जामुन का बड़ा सा डिब्बा लेकर जाओ और उसे कह देना कि कल से तुम ट्यूशन में नहीं आओगी। अब तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम एक बिलीनियर की बीवी बनने वाली हो। तुम्हें इस मामूली सी डिग्री के लिए मेहनत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरमान ज़ोरों शोर से उसे गलत मशवरे दे रहा था, और वो भी बहुत गौर से अरमान की बातें सुन रही थी, जैसे कोई बहुत ही ज़रूरी ऐलान कर रहा हो। जब वो मिठाई का डिब्बा लेकर शामिर के घर पहुंची तो वो लॉन में ही बैठा था, और शामिर ने उसे वहां आने का इशारा किया। उसके हाथों में डिब्बा देख वो हैरान हुई। उस्ताद जी, ये आपके लिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये तुम किस खुशी में लाई हो? जी उस्ताद जी, मैं आपको बता रही थी कि हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। अब मैं कल से ट्यूशन में नहीं आऊँगी। मुझे अब इन छोटी मोटी डिग्रियों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिलियनियर की बीवी बनने वाली हूँ। शामिर ने तहम्मुल से उसकी सारी बात सुनी, फिर ठंडे लहजे में बोला, रिश्ता हुआ है, शादी नहीं हुई। चुप करके ना यहाँ बैठो और अपनी पढ़ाई करो। आज भी तुम अपने टाइम पर छुट्टी करोगी, और जब तक तुम्हारे इम्तिहान नहीं हो जाते ना, तब तक इस रिश्ते की बात भी अपने जहन से निकाल दे। देखिए उस्ताद जी, आप मुझसे इस तरह सख्ती नहीं कर सकते। अभी आप मेरे होने वाले शौहर को जानते नहीं हैं। वो बिलियनियर है, और मैंने सुना है
کہ ان کے پاس بہت بڑی گاڑی بھی ہے، اور اگر ایک بھی گاڑی آپ کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکی دے رہی تھی، اور رشتہ ہوتے ہی اسے پڑ لگ گئے تھے۔ کوئی بدنصیب انسان ہوگا بیچارہ جس کی شامت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے۔ شامر نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، بد نصیب نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہے وہ۔ مٹھائی کا ڈبہ کہیں رکھتی وہ ٹھمک ٹھمک کرتی تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو خوشی سے چیختی ہوئی بولی، تم یقین نہیں کرو گے بھائی، میں نے وہ ساری باتیں استاد جی کو بول دی ہیں جو تم نے مجھے کہی تھی۔ ارمان کا دل ڈوب کر ابھرا، کیونکہ وہ تو مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی بہن نے واقعی میں سیریس لے لیا تھا۔ وہ یہاں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اسے ایک اہم کال آ گئی تھی جسے سننے کے لیے وہ رک گیا، اور اس دوران اس کی بہن بھی واپس آ چکی تھی۔ صفدر جب حویلی واپس آئے تو سب سے پہلے میرال ہی بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا سے کس طرح سوال کرے۔ ارمان بھی بابا کے پاس بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی بہن کی مشکل آسان کر دی، اور اس سے رشتے کے بارے میں بات کی تو صفدر صاحب بولے، ہاں ہاں مجھے یاد آیا بیٹا، تم نے مجھے خود کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں تو تمہیں منظور ہوگا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولے، جی بابا جان میں نے کہا تھا، اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بابا میں نے آپ کو یہ بھی تو کہا تھا نا کہ لڑکا تھوڑا پیارا اور ہینڈسم ہونا چاہیے۔ کشمالہ بیگم نے اپنا پہلو بدلا، کیونکہ بیٹی واقعی عقل سے پیدل تھی جو اپنے باپ سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی تم ٹینشن نہ لو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے انتہائی ہینڈسم لڑکا چنا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ شامر ہے۔ میرال کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ اسے حیرت سے ارمان کی طرف دیکھا تو ارمان نے کندھے اچکا دیے۔ وہ ویلا بھی نہیں بچا پائی تھی، کیونکہ صفدر صاحب کافی خوش نظر آ رہے تھے، اور بس وہ یہی سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ استاد جی نے اس رشتے کے لیے حامی کیسے بڑھ لی۔ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے ٹیوشن جانا چھوڑ دیا، کیونکہ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ شامر ایک دن اسے اپنے ساتھ بازار لے جانے کے لیے آیا، کیونکہ محترمہ نے نکاح کا جوڑا پسند کرنا تھا۔ کافی عرصے کے بعد شامر سے ملاقات ہو رہی تھی، اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شامر کو بہت بدلا بدلا سا تھا۔ آج وہ بہت میٹھے اور نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، اور جب بھی وہ میرال کا نام لیتا تو میرال کے دل کی رٹ مس ہوتی، اور شامر کا دوسرا روپ دیکھ رہی تھی، اور وہاں بھی شامر نے اس کی پسند کو ہی اہمیت دی تھی۔ جب وہ واپس گاڑی میں جا کے بیٹھے تو شامر اسے کھانا کھلانے بھی لے گیا، اور اس دوران وہ اسے بار بار بولنے پر بھی اکسا رہا تھا، جبکہ میرال کو یاد تھا کہ پہلے جب بھی بولتی تھی شامر کہتا تھا کہ تم مت بولا کرو کیونکہ تم فضول بولتی ہو، اور آج وہ بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرال نے ہمت کر کے اس سے سوال کیا، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ شادی آپ کسی کے دباؤ میں تو نہیں کر رہے نا؟ شامر نے گہری سانس دی، کیونکہ وہ اس سوال کی توقع کر رہا تھا۔ نہیں، یہ شادی کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہا، بلکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے محبت بھی کرتا ہوں، تمہارے ساتھ میں خوشگوار زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں تو بے وقوف ہوں، فکر مت کرو، شادی کے بعد سب سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ شرم کے مارے پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شامر جھوٹ نہیں بولتا، اور اسے شامر کی کئی بات پر یقین بھی تھا۔ اس کا دل اچانک سے پرسکون سا ہو گیا، اور اب اس کے دل میں کسی قسم کی کسک نہیں تھی، بلکہ ایک انجانی سی خوشی تھی کہ اس نک چڑھے انسان کی پسندیدہ عورت بن گئی ہے۔ آج حویلی پھولوں سے سجی ہوئی تھی، گیندے کی مالائیں، گلاب کی پتیاں اور روشنیوں کی قطاریں ہر طرف بکھری ہوئی تھی، اور ہوا میں عطر اور مہندی کی خوشبو کھلی ہوئی تھی، کیونکہ آج میرال کا نکاح تھا۔ وہی میرال جو کل تک اپنے استاد جی کو راجہ پورس کہتی تھی، آج اسی کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ کشمالہ بیگم آنسو پوچھتے ہوئے اپنی بیٹی کو آخری بار سنوار رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں میرال کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، بھاری زیور ماتھے پر ٹکا اور ہاتھوں میں گہری مہندی اسے ایک نئی میرال بنا رہی تھی، مگر اندر سے وہ کانپ رہی تھی۔
जब बाबा जान कमरे में दाखिल हुए तो उसे देखकर उनकी आंखें भर आई। मिराल बेटा, सफदर साहब ने धीमे लहजे में कहा। मिराल उठकर उनसे लिपट गई। बाबा जान, आज के बाद आप मुझे याद नहीं करेंगे क्या? सफदर साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। मेरी जान, तुम जहाँ भी जाओ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। शामिर अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मिराल ने कुछ नहीं कहा और नजरें झुका ली। निकाह की मजलिस में अलमा की आवाज़ें गूंज रही थी। शामिर सफ़ेद शेरवानी में बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून और संजीदा था, मगर आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे सिर्फ अरमान ने महसूस किया। यार, आज थोड़ा सा मुस्कुरा लो, आज तुम्हारी शादी कोई अदालत नहीं लगी। अरमान ने उसके कान में कहा तो शामिर ने सो घूरा, मगर इस बार घूरने में पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। काजी साहब ने 3 बार कबूल है पूछा और हर बार शामिर की आवाज़ पहले से ज़्यादा पुख्ता थी। कबूल है। दूसरी तरफ कमरे में निराल की सहेलियों से छिड़ रही थी। कबूल है कहना, भूल ना जाना। और जब काजी साहब ने सवाल किया तो उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सबने कान लगाए। कबूल है, उसने एक ही बार कहा और फौरन चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया, क्योंकि उसके गाल सुर्ख अंगारों की तरह हो गए थे। रुखसी का वक्त आया तो कुशमाला बेगम, जो कि हमेशा बेटी को डांटती रहती थी, आज बिलक बिलक कर रो रही थी और सफदर साहब की आंखें भी भीगी हुई थी। अरमान ने मिराल का हाथ पकड़ा और दरवाजे तक लाया। छोटी बहना, अपना ख्याल रखना, और कभी कभी तकलीफ हो ना तो भाई याद है ना। उसकी आंखें भी लाल थी, मगर वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। मिराल की आंखें झलक पड़ी। वो अम्मी से लिपटी और फिर बाबा जान के सीने से लगी और देर तक यूं ही खड़ी रही। खुश रहो बेटा, उन्होंने माथे पर बोसा देते हुए कहा। शामिर खामोशी से गाड़ी के पास खड़ा था। उसने मिराल को देखा, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा खोल दिया। मिराल बैठ गई और फौरन खिड़की की तरफ मुंह कर लिया, ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके। गाड़ी चली तो वो भीगी आंखों से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद शामिर ने धीमे लहजे में पूछा, भूख लगी है? मिराल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, और फिर वो खामोश हो गई। शामिर ने एक नज़र उसकी उदास चेहरे और नम आंखों पर डाली और पूछा, घर याद आ रहा है? मिराल ने सिर्फ गर्दन हिलाई। एक लम्हा सोच कर वो बोला, जब भी जाना हो बता देना। सफदर अंकल ने वैसे भी कहा है कि हर हफ्ते मिलने आओ। इस बार मिराल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वाकई? शामिर ने सड़क पर से नजरें जुमाए हुए सिर्फ हाँ कहा तो पहली बार मिराल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो दोबारा खिड़की की तरफ मुड़ गई, मगर इस बार आंखें खुश्क थी। हवेली पहुंचने पर जकिया बेगम ने उसका इस्तकबाल किया। गले लगाकर कहा, बेटा, अब ये घर तुम्हारा अपना घर है। मिराल ने चारों तरफ देखा। बड़ी और पुर शिकवा मगर अजनबी हवेली थी। जब सब लोग चले गए तो वो कमरे में अकेली बैठी थी, भारी जोड़े और जेवर में थकी हुई, और कमरा फूलों से सजा हुआ था। कुछ देर बाद शामिर अंदर आया तो मिराल फौरन सीधी होकर बैठ गई और नजरें झुका ली। शामिर ने उसे देखा। वो इतनी खामोश थी जैसे वो मिराल ही ना हो, जो हर वक्त बोलती रहती थी। थकी हुई हो? उसे सादा से लहजे में पूछा। मिराल ने बगैर ऊपर देखे सिर्फ हाँ कहा। शामिर करीब आया, आहिस्ता से बोला, एक बात कहूँ? मिराल ने आहिस्ता से ऊपर देखा। उसे पहली बार इतने करीब से शामिर को देखा था और महसूस किया कि उसकी आंखों में आज भी वो सख्ती नहीं, बल्कि कुछ और है जिसे वो समझ नहीं पाई। शामिर ने धीमे लहजे में कहा, जो कुछ पहले हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो ठीक नहीं था। मिराल की आंखें फैल गई, क्योंकि ये वही शामिर था जो कभी माफ़ी नहीं मांगता था। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि शामिर ने आगे कहा, लेकिन अब जो है वो ये है, ये तो मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिराल ने होंठ काटे और बेख्तियार बोली, बस जिम्मेदारी? शामिर ने एक लम्हा उसकी आंखों में देखा और उसके होंठों पर वही नायाब सी मुस्कुराहट आई। और क्या चाहिए तुम्हें? मिराल ने फौरन मुंह फेर लिया, क्योंकि उसके गाल फिर से सुर्ख हो गए थे। कुछ नहीं, उसे बुड़बुड़ाते हुए कहा। शामिर आहिस्ता से हंसा और वो आवाज़ मिराल ने पहली बार सुनी, नरम गर्म और बिल्कुल अजनबी। और फिर वो बोला, आज के बाद सोने से पहले कोई भागने का प्लान नहीं बनाना। मिराल ने घूर कर उसे देखा। दोनों की आंखें मिली और इस बार
कोई भी नजरें नहीं चुरा सका। मिराल ने घूर कर उसे देखा। कमरे में खामोशी थी, मगर वो खामोशी भूजल नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी जो मिराल को अंदर से सुकून दे रही थी। शामिर, उसे आहिस्ता से पुकारा। उसने उसी धीमे लहजे में जवाब दिया। आपने कभी मुझे पसंद नहीं किया था ना? उसे बेबाकी से सवाल किया, मगर आवाज में वो पुरानी शरारत नहीं थी, बल्कि एक सच्ची जुस्तजू थी। शामिर ने एक लम्हा उसके चेहरे को देखा, वही चेहरा जो कभी उसे परेशान करता था और कभी बगैर वजह के याद आता था। मैंने ये कब का? उसने उल्टा सवाल किया। मेराल की आंखें फैल गई। तो फिर वो सब सख्ती क्यों थी? शामिर ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि जो चीज़ अपनी हो उसका ख्याल रखना पड़ता है, चाहे तरीका गलत ही क्यों ना हो। मेराल के दिल ने एक धड़कन छोड़ी। कुछ बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। और ये पहली बार था कि मेराल की जुबान ने उसका साथ छोड़ दिया। शामिर उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा, जहाँ रात की ठंडी हवा फूलों की खुशबू उड़ा कर ला रही थी। मेराल, जब तुम अस्पताल में बहकी बहकी बातें कर रही थी ना, उस रात मुझे बहुत डर लगा था। डर? मेराल हैरत से बोली। आपको? हाँ, मुझे। वो पलटा और सीधी आंखों में देख कर बोला, अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो। उसे दूर जुमला अधूरा छोड़ दिया, बगैर मेराल समझ गई, क्योंकि कुछ बातें अल्फाज से नहीं, आंखों से कही जाती हैं। मेराल के होंठों पर वही पुरानी शरारती मुस्कुराहट है। वो बोली, तो मान ले कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। शामिर ने एक लंबी सांस ली और फिर हल्के से बोला, हाँ, मान लेता हूँ। मेराल को यकीन नहीं आया। वो उछल कर खड़ी हो गई। सच में? वाकई? आपने मान लिया? एक बार और पूछा तो वापस ले लूंगा। वो इस बार मेराल ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि ये लम्हा किसी कीमत पर भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। वो धीरे से करीब आई और बोली, उस्ताद जी। क्या? शामिर ने ब्रूज खाया। शुक्रिया। किस बात का? इस बात का कि आपने मुझे पसंद किया, इस बात का कि आपने मेरी परवाह की, और इस बात का कि आज आप मेरे हैं। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार शामिर ने आगे बढ़कर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई कीमती चीज़ को संभालता है। सो जाओ, कल से फिर पढ़ाई शुरू होगी। क्या? मेराल ने चीखते हुए कहा। शादी हो गई है, दिमाग नहीं गया तुम्हारा? डिग्री तो पूरी करनी है ना? या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत से शादी कर ली? वो मुंह बनाते हुए बुड़बुड़ाई, तो शामिर के होंठों पर वही नादिर मुस्कुराहट है जो सिर्फ मेराल के लिए मखसूस थी। और मेराल ने चुपके से मुस्कुराते सोचा कि ये मुसीबत भी बुरी नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी और मेराल कब नींद में चली गई उसे खुद भी पता न चला। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में सूरज की हल्की रोशनी फैली हुई थी और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। फिर एक लम्हा के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही नज़र कमरे पर पड़ी, सब याद आ गया और दिल ने एक अजीब सी लहर महसूस की। खौफ नहीं, अजनबियत नहीं, बस एक अनजानी सी गर्माहट थी। वो उठ कर बैठी तो साइड टेबल पर एक छोटी सी ट्रे रखी थी, चाय का कप, 2 बिस्किट और साथ में एक छोटा सा कागज। मेराल ने हैरत से कागज उठा और पढ़ा। नाश्ता नीचे है, अम्मी ने बनाया, देर मत करना, और हाँ, आज छुट्टी है पढ़ाई से। मेराल के होंठों पर मुस्कुराहट आई। उसने कागज सीने से लगा लिया। ये शामिर का अपना अंदाज था मोहब्बत जताने का। ना मीठे बोल, न लंबी चौड़ी बातें, बस छोटे छोटे काम जो दिल तक पहुंच जाते थे। वो जल्दी से तैयार हुई और नीचे आई तो जकिया बेगम बावर्ची खाने में मसरूफ थी। आ गई मेरी बेटी, आओ आओ, बैठो। उन्होंने इतनी मोहब्बत से कहा कि मेराल की आंखें भीग गई। अम्मी याद आ गई, घर याद आ गया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सखिया बेगम ने फौरन उसके सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं अम्मी जान, बस आपने इतना प्यार से बुलाया तो। वो आंसू पूछते हुए मुस्कुराई। सखिया बेगम ने उसे गले लगाया। पगली लड़की, ये घर अब तुम्हारा अपना है और मैं तुम्हारी अपनी अम्मी, समझी? मेराल ने गर्दन हिलाई और दिल में महसूस किया कि शायद ये जगह इतनी भी अजनबी नहीं है। नाश्ते के दौरान शाहमीर भी आ गया। उसने मेराल की तरफ एक नज़र डाली और बगैर कुछ कहे बैठ गया। शुक्रिया। मेराल ने आहिस्ता से कहा, किस बात का? उसे चाय का कप उठाते हुए पूछा। चाय के लिए, कागज के लिए और छुट्टी देने के लिए। शामिर ने एक लम्हा उसे देखा और बोला, कल से छुट्टी नहीं है? या अल्लाह। मेराल ने आसमान की तरफ देखा तो जकिया बेगम हंस पड़ी और शामिर ने नजरें छुपाने के लिए चाय का कप मुंह से लगा लिया।
मगर होंठों पर मुस्कुराहट छुपाए ना छुपी। दोपहर को जब शामिर बाहर किसी काम से गया तो मेराल लॉन में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में फ़ोन था और वो अम्मी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने क्यों कॉल नहीं लग रही थी। उसी वक्त पीछे से कदमों की आवाज़ आई। क्या हुआ? शामिर की आवाज़ थी। वो वापस आ चुका था। फ़ोन नहीं लग रहा अम्मी का, उसने उदासी से कहा। शामिर ने खामोशी से उसके हाथ से फ़ोन लिया, नंबर मिलाया और वापस दे दिया। 1 सेकंड में घंटी बजी और अम्मी की आवाज़ आई, मेराल बेटा। मेराल का चेहरा खिल उठा। अम्मी जान। शामिर वहाँ से उठकर जाने लगा तो मेराल ने बेख्तियार कहा, रुके। वो पलटा। बैठे ना यहाँ, उसने सादा से लहजे में कहा। शामिर ने एक लम्हा उसे देखा और फिर चुपचाप उसके करीब बैठ गया। मेराल अम्मी से बातें करती रही और शामिर खामोशी से उसके चेहरे की खुशी देखता रहा। जब कॉल ख़त्म हुई तो मेराल ने सुकून से लंबी सांस ली और बोली, अब बेहतर लग रहा है, अच्छा है। शामिर ने कहा और वो दोनों काफ़ी देर खामोश बैठे रहे। हवा चल रही थी और घर के फूल हल्के हल्के हिल रहे थे। फिर मेराल ने चुपके से पूछा, शामिर क्या आप कभी मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? शामिर ने एक नज़र उस पर डाली और बोला, तुम जैसी हो उसी उसमें नाराज़ ना हो ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो फिर? मेराल ने सहम कर पूछा, लेकिन नाराज़गी के बाद मनाना भी मैं ही जानता हूँ। मेराल ने हैरत से उसकी तरफ देखा और वे बेख्तियार हंस पड़ी। वही खिलखिलाहट जो पूरी हवेली में गूंजी और ज़किया बेगम के अंदर से सुल कर सुकून की सांस ली। शामिर ने उसकी हंसी देखी और दिल में चुपके से सोचा कि इस आवाज़ को हमेशा इसी तरह बाकी रखना है, यही उसकी असल जिम्मेदारी है। शाम ढली तो वो दोनों छत पर बैठे थे। वही चांद जिसे मेराल अकेले घूरती थी आज शामिर के साथ दिख रही थी। और फ़र्क ये था कि आज दिल में टेंशन नहीं थी बल्कि सुकून था। उस्ताद जी, उसने आहिस्ता से पुकारा। अब उस्ताद जी नहीं कहो, शामिर ने टोका। तो फिर क्या कहूँ? जो दिल चाहे। मेराल ने सोचा, फिर शरारत से बोली, तो क्या मैं पिच राजा पोर्स कह सकती हूँ? शामिर ने से घूरा, फौरन बोली, ठीक है शामिर कहूँगी। और इस बार शामिर ना सिर्फ मुस्कुराए बल्कि आहिस्ता से हंसा। और मेराल ने वो आवाज़ दिल में महफूज कर ली, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ उसके लिए थी, पूरी दुनिया में सिर्फ उसके लिए। रात के अंधेरे में हवेली की रोशनियाँ जगमगा रही थी और दो इंसान जो कल तक एक दूसरे को चिढ़ाते थे आज एक दूसरे के साथ बैठे थे, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी शिकवे के, बस एक मुकम्मल खामोशी में, जो कह रही थी कि ये वही जगह है जहाँ दोनों को होना चाहिए था।